Hello. Am I audible? Hello. Yes, ma'am. Okay. We started Yes, with ma'am. okay, ji, okay. So we started with joint probability distribution yesterday. Let me just share my screen first. So joint probability distribution is when two random variables x and y are defined on the same probability space. So this is the distribution example that I showed you. So for any joint distribution, fxy, so if this fxy dx dy is equal to 1, then it means that it is a valid joint distribution function. Okay. And then we can find out the marginal and conditional probability function. ठीक है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी कोई भी रैंडम वेरिएबल x है, it will take some value xi. So this gives us the marginal distribution. Okay, any random variable x, if it takes on the value xi. ना अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम कराऊंगी तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आपको क्लियर हो जाएगी. And for y it is that the probability that y will take value yj. That is the marginal probability of function y. Then we have conditional probability. So if I take the conditional probability of x when y is equal to yj. Okay. This is conditional probability. And two random variables are said to be independent if this probability of this x, probability that x will take on the value xi and y will take on the value yj. This is equal to the product of both the probabilities. Okay, then they are independent, otherwise they are dependent. ठीक है, अब पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं या मैं बता देती हूँ ना एक्सपेक्टेशन क्या होती है. एक्सपेक्टेशन ऑफ ए joint density function. So if I have x and y two-dimensional discrete random variables with this joint distribution function given as fxy, then the expectation can be calculated as this. So xy ये ना xy की जो combined distribution है, ठीक है, ये एक मिनट, ठीक है, ये important है मेरे लिए यहाँ. This is, ठीक है, ये तो मुझे पता है ना, this I know. So if I have to find out the expectation of x and y together, then it is xy fxy. So if this is these x and y are two continuous random variables, then this will be replaced by integral. Now integral this fx y, okay, xy dx dy xy. So this will be replaced by the integral. अब तक ये हमें समझ आ गया. Yeah, this is the covariance. So we need to find out the covariance and correlation. Okay, ये we'll get back to this again. Let us do this problem first. ठीक है, इससे हमें marginal distribution और ये सब चीजें clear हो जाएंगी. ठीक है, now this is a bivariate probability distribution of x and y. Now just please observe this table. ठीक है, इस टेबल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दैट x is having values 0, 1 and 2.
X and Y are two discrete random variables, and X can take the value, X जो है it can take on the values 0, 1 and 2. You can Y can take on the values 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now if I want to find out the probability that X is equal to 0, X is equal to 0. So irrespective of what is Y, okay, irrespective of what is Y. So this is the probability that X will be equal to 0. Probability that X will be 0. तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि X 0 होगा? प्रोबेबिलिटी that X will be 0. This is 8/32. देखिए ये टेबल हमें समझ में आएगी तभी हम आगे प्रॉब्लम करेंगे. Okay, this is a bivariate probability distribution table of two discrete random variables X and Y. दो discrete random variables है मेरे पास X और Y, उनकी probability distribution table है. ठीक ठीक है. तो दिस इज द टेबल. ठीक है, ये टेबल है जो मुझे गिवन है. ये मुझे गिवन है ये टेबल. ठीक है, ये मैंने निकाला है. प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी इक्वल टू 0. देन दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी इक्वल टू 1. x1 है यहाँ पूरे में, एंड दिस इज द टोटल. ठीक है, तो ये कैसे आया? ये कहां से आ रही है? इन सब का सम है. इन सब का सम है. ठीक है, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, sum of all the x's, all values that the x can take, okay, all xi that it can take, and this is the marginal probability of function y. ठीक है, ये एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखाती हूँ. तो यहाँ ये क्या है? दिस इज द marginal probability of x. Marginal probability of x. ठीक है, ये कैसे आई? This plus this plus this plus this. So this is the marginal probability of x. है ये है ना कि x जो है इट विल टेक वैल्यू 0. probability that x will take value 0. Then this is the probability that x will take value 1. Then this is the probability that x will take value 2. ये कैसे आई? It is the sum of all these. So this is the marginal probability of x. ठीक. Similarly, this is the marginal probability in सबका sum that x will take value 2 irrespective of what is the value of y. ठीक है. Similarly, I can find out this. This is the probability that y will take value 1. Probability that y will take value 2. This is that y will take value 3. Probability that y will take on value 4. That y will take on value 5. That y will take on value 6. ये क्या है? It is the sum of these two. इन तीनों का इनफैक्ट वो 0 है.
तो इनका सम, ठीक है, इनका सम करेंगे तो ये आएगा, वी टेक द समेशन, तो ऑल दीज थ्री सम करेंगे तो ये आ जाएगा इनका सम, ठीक, समेशन करेंगे ये आ गया। ठीक है, अब जब मैंने ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल ली तो ये मेरी क्या हो गई, मेरे पास क्या आ गया, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब मैंने ये सब निकाल लिया तो मेरे पास क्या आ गया, आई हैव गॉट दी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर हम ये देखें, है ना, इफ आई टेक द सम ऑफ ऑल दीज, अगर मैं इनका सम लूं तो क्या आएगा, करके बताओ क्या आएगा। इफ आई टेक द सम ऑफ ऑल दीज, हेलो, करके बताएंगे जी, आप लोग बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो। प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज। मैम सिर्फ px का या फिर py का भी? नहीं, पहले आप ये, मैंने जो, एक मिनट रुको, ठीक है, जिसको मैं सर्कल में ले रही हूँ ना, इसका सम निकालो, ठीक है, और फिर इनका सम निकालो। ठीक है, इनका सम क्या होगा और इसका सम क्या होगा, जल्दी से निकाल के बताएंगे मुझे। मैम दोनों का 1 आ रहा है। यस, इट शुड बी 1। ठीक है, तो ये जो ब्लॉक मैंने खाली छोड़ा है, यहाँ क्या आएगा, इट इज 1। ठीक है, तो इन सब का सम भी 1, इन सब का सम भी 1, यस मैम 1 ही है। तो ये 1 होना भी चाहिए, है ना, इट शुड बी 1। ठीक है ना, तो अगर, तो आपने जब ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन जब आपने निकाला, ठीक है, फिर आप ये चेक करेंगे, अगर इनका सम 1 आ रहा है और इसका भी सम 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने जो भी किया अब तक वो ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ठीक है, अब मुझे निकालना है, ये फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। आई हैव टू फाइंड आउट दिस फर्स्ट पार्ट, that x is less than or equal to 2 and y is equal to 3, ये मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब ये मैं निकालती हूँ, x is less than or equal to 2 का क्या मतलब है कि x जो है 0 है, ठीक है, y 3 है, प्लस x is less than or equal to 2 मतलब x is equal to 1 है और y is equal to 3 है, प्लस x is equal to 2 and y is equal to 3। क्या यही निकालना है मुझे? हाँ जी, यही निकालना है ना मुझे। प्रॉब्लम समझ में आई आपको, मुझे क्या निकालना है? हेलो, क्या मैंने ये लिखा है, जो ये सही लिखा है यही निकालना है मुझे? यस मैम। है ना, यही निकालना है मुझे, ठीक है, ठीक है, मुझे यही निकालना है, मुझे निकालना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो x लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब x 0 हो सकता है, x 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है, एंड y इन ऑल केसेस इज 3। y in all cases is 3। So y in all cases is 3। अब यहां से मैं ये प्रोबेबिलिटी, आई कैन सी दिस प्रोबेबिलिटी, एक मिनट प्लीज होल्ड ऑन।
So probability that x is equal to 0 and y is equal to 3. X is equal to 0 and y is equal to 3. Then x is equal to 1 and y is equal to 3. Then x is equal to 2 and y is equal to 3. ठीक है, तो इसका हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 11/64. ये समझ में आ गया? नहीं आया? ये टेबल समझ में आई आपको? जो ऊपर टेबल समझ में आ गई? टेबल आपको समझ में आ गई? ये टेबल कैसे बनी हुई है? ये गिवन है टेबल. दिस टेबल इज गिवन टू यू. मैंने नहीं बनाई, ये दी हुई है टेबल मुझे. इट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. ये मेरी प्रॉब्लम है, यहां तक जो दिया हुआ इट इज प्रॉब्लम. मैंने क्या निकाला इसमें? मैंने एक तो ये निकाला इसमें और एक ये निकाला है. ये मैंने निकाल के भरा है इस टेबल में. ठीक, क्या नहीं समझ में आया? ठीक है, आई हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू 2 एंड वाई विल बी इक्वल टू 3. तो वाई तो 3 ही है सब केसेस में. वाई इज 3 इन ऑल केसेस. एक्स की वैल्यू 0 हो सकती है. लेस देन और इक्वल टू 2 जब हम बोलते हैं तो इट मे बी 0, इट मे बी 1 और इट मे बी 2. प्रोबेबिलिटी यहां दी हुई है. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी यहां दी हुई है. x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी यहां दी हुई है. I have just taken the values from this table and entered the values here. मैम हाँ जी, मैम ये तो तब है ना मैम जब हमें x और y दोनों दिया है. हाँ जी, हाँ जी. मैम बट अगर जैसे सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ x दिया है तो कैसे करेंगे, एक बार वो भी बता दो जरा. हाँ ठीक है, ये चीज ये आ गया ना? ये क्लियर है? यस मैम, ये आ गया मैम, ये आ गया. यस मैम ये आ ठीक गया. है, ठीक है. अब सेकंड केस लेते हैं हम कि x इज लेस देन और इक्वल टू 1. ठीक है, यही ले लेते हैं ना. प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या लेना है मुझे कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है? x इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये तो मैंने निकाली थी ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था. ये क्या है? दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 irrespective of what is the value of y. ठीक है, ठीक है ना? ये सेकंड पार्ट, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम. आगे बढ़ते हैं. थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 4. y इज इक्वल टू 4 कहाँ है? ये रहा, निकाली हुई है मैंने 13/64. अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन और इक्वल टू 5. तो y इज लेस देन और इक्वल टू 5 मुझे निकालना है. ठीक है, y इज लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब क्या है कि मुझे निकालना है कि y इज इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 5. अच्छा 0 तो है नहीं, 1, y इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 4
plus probability that y is equal to 5. मतलब कि इन सब का सम, इन सब का सम, या मैं क्या कर सकती हूँ, 1 माइनस, मैं ये भी कर सकती हूँ, यस मैं कर सकती हूँ ऐसा, यस मैम। है ना, मैं ऐसा भी Yes. कर सकती हूँ कि मैं इन सब का सम निकालूं। इससे अच्छा है कि मैं, क्योंकि ये अकेली बची और मुझे पता है कि ये टोटल 1 है, इन सब का सम निकालूं, इससे अच्छा मैं 1 में से इसको माइनस कर दूं तो काम बन जाएगा। ठीक है ना। अब 4th पार्ट तो मैंने कर दिया, 5th पार्ट आप मुझे करके बताएंगे। 5th आप निकालेंगे, probability that x is less than 2, y is less than equal to 3. ठीक है, x लेस देन 2 और y लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब मुझे क्या लेना है, x लेस देन 2 मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तो मुझे x लेने हैं और y मुझे क्या, लेस देन और इक्वल टू 3 मतलब y की वैल्यू मुझे लेनी है 0, 1 और 2 और 3 भी लेना है क्या, y इज इक्वल टू 3 भी बाई लेना है। 1 है। अच्छा y 1 है नहीं, हाँ ये है नहीं, तो ये लेना है मुझे। तो अब मुझे ये सारे कॉम्बिनेशन लेने होंगे। ठीक है, x के सारे कॉम्बिनेशन y के साथ, मतलब x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, फिर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, फिर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। नाउ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। x is equal to 1, y is equal to 2, x is equal to 1, y is equal to 3। ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज मुझे दी हुई है यहाँ, एंड आई कैन फाइंड आउट दी सम। ठीक है ना, कर लेंगे, कर लेंगे आप ये, ओके। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, इससे पहले एक प्रॉब्लम और, अब एक्सपेक्टेशन और कोवेरियंस भी निकालनी है हमें ना। ठीक है, एक मैं आपको अभी प्रॉब्लम दूंगी जिसकी मुझे ये निकालनी है एक्सपेक्टेशन। आप चाहें तो ये प्रॉब्लम, ये न्यूमेरिक फॉर्मूला जो है आप लिख लें। ठीक है, आई विल गिव यू वन प्रॉब्लम नाउ, ये लिख लें आप फॉर्मूला। ठीक है, और ये भी लिख लो, कोवेरियंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, लिख लिया, हैव यू नोटेड इट डाउन? 1 मिनट मैम। हाँ लिख लो, लिख। लिख लिया जी, हैव यू कॉपीड इट? यस मैम। ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला भी लिख लो। ठीक है, ये जो नीचे सबसे नीचे ना, ई एक्स वाई, सो दिस इज एक्स वाई एफ एक्स वाई।
ठीक है. Now you have to do one problem. Okay, ये this blank page I have kept. ठीक है. Now I will draw a table. आपको ये मैं एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ. This is one distribution which is given. This is a distribution which is given. So you have x and y. So x can take values 2, 4, and 6. And y can take values 1, 3, and 9. So this is 1 by 8, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 24, 1 by 4. So find marginal distribution y. Y की marginal distribution. ठीक है. दिस इज द प्रॉब्लम दैट यू हैव टू डू. तो सबसे पहले आप ए पार्ट करके मुझे बताएंगे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन वाई की क्या होगी. ठीक है. मतलब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट these three values. When I say marginal, find the marginal distribution of y. So you have to find out these three values. है ना? Y will be 1, y will take values 3, y will be 9. ये निकालना है आपको. ठीक है. अगर मैं आपसे पूछती कि आप मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकालो तो फिर आपको क्या निकालना था? फिर मुझे ये निकालना था. This is marginal distribution of x and this is marginal distribution, probability distribution of y. ठीक है. निकालेंगे. निकाल के बताएंगे what is the probability that y will be equal to 1, then what is the probability that y will be equal to 3, then what is the probability that y will be equal to 9. ठीक है. ये निकालेंगे वैल्यू. I am giving you 2 minutes. मैम फर्स्ट वाला तो 1/2 है. Yes, it is 1/2. मैम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं? ऐसे आप ऐसे फ्रैक्शंस में ही बता दो ना क्या है. क्योंकि मैम मैंने कैलकुलेट किया था ना, वैसे अभी पेपर में नहीं किया. अच्छा, कैलकुलेटर से कर रहे हो. कितना आया? 0.33 है मैम. 0.33 है ना. So 0.33 is what? 1/3. यस मैम. So this is 1/3.
ये तो सिंपल यहीं से हो जाएगा ना, 1/12 प्लस 1/12 इज 2/12, यानी कि 1/6 आ गया ये। Yes. ठीक है, ए पार्ट हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस डू बी पार्ट। सो आई हैव टू फाइंड आउट द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y। अच्छा, ये आगे गिवन भी है, गिवन दैट x इज इक्वल टू 4। ये पूरा प्रॉब्लम ऐसे, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y गिवन दैट x इज इक्वल टू 4। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है ना, आई हैव टू फाइंड आउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of y when x is equal to 4. So I have to find out this probability that y will be equal to y when x is equal to 4. So I have to find out this, that probability that y is equal to y intersection x is equal to 4 over this x is equal to 4. फॉर्मूला पीछे लिखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था अभी। ठीक है, तो अब इसमें मेरे पास, सो आई विल हैव 3 केसेस हियर। 3 केसेस होंगे, है ना? तो वो क्या होंगे 3 केसेस? वन इज दैट प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 4। Similarly, I will find out that y is equal to 3 and x is equal to 4 when x is already 4. Third is I will find out that y is equal to 9. Now I have to take all the possibilities. X is equal to 4 over probability that x is equal to 4. So y is equal to 1 and x is equal to 4. Y is equal to 1 and x is equal to 4 ये है. So this is 1/4 over x is equal to 4 की probability क्या है? ये मुझे निकालनी होगी, ये it will be 2/4, ये मुझे निकालना है। x is equal to probability that x is equal to 4 क्या होगा? ये होगा इनका सम, so it is 2/4. So it is 2/4. So this is y is equal to 3 and x is equal to 4. 1/4. It is also 1/4 by 2/4. And y is equal to 9. Okay, this is 0. ठीक है, ये 0 है. Conditional distribution of y when x is equal to 4. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। Is it clear? Okay. ठीक है, so now I have to find out the covariance of xy. ठीक है, कोवेरियंस के लिए मुझे क्या चाहिए? ठीक है, टू फाइंड आउट द कोवेरियंस. ठीक है, नाउ टू फाइंड आउट द कोवेरियंस आई हैव टू फाइंड आउट द कोवेरियंस ऑफ xy. ठीक है, इसके लिए मुझे क्या क्या निकालना होगा? एक तो मुझे ये निकालना होगा, फिर मुझे ये निकालना होगा, और फिर मुझे ये निकालना. So Ex, I know this is equal to summation of this fx. Ey, this is equal to y, and Exy, this will be equal to xy
fxy x जब 2 है, ठीक है, इसके लिए ना आपको ये निकालना पड़ेगा, ये these values you have to find out. ठीक है, ये वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेंगी. This is 6/24, this is 2/4, this is 6/24, this is 4/8, 8/24, 2/12. So x fx, when x is 2, fx is 6/24. Plus when x is 4, fx is 2/4. Plus when this is 6, this is 6/24. ये आप निकाल लेंगे, टाइम कम बचा है. ठीक है, सो यू नोट डाउन दिस प्रॉब्लम. ठीक है, आपने कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख लिया, मैंने आपको बता दिया. ठीक है, यू ट्राई दिस प्रॉब्लम योरसेल्फ, वी विल डू दिस टुमारो. ठीक है, आप ये नोट कर लें, इस प्रॉब्लम को आगे हम कल करेंगे. ठीक है, आज मैं आपको आई विल शेयर 2 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स विद यू टुडे. ठीक है, ताकि आप जो है उन 2 प्रॉब्लम्स को देख के कुछ ज्यूम कर सकें. दे आर इजी. ठीक है, बस द ओनली थिंग इज दैट यू मस्ट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए. हैव यू नोटेड दिस? आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका. ठीक है, नहीं तो मैं भेज दूंगी. आई विल शेयर दिस प्रॉब्लम. ठीक, एक बार मैं अटेंडेंस देख लूं कौन नहीं है. सो आशीष इज देयर, आशीष, अनीश, रंजन है, निधि, पारस, पीयूष, प्रभा, प्रदुमन नहीं है. पहले तो था, मैंने देखा था, आई अलाउड हिम. राहुल, सौरभ, ओके, सौरभ, Yes, ma'am. विजय एंड यश. 1 2 3. ठीक है जी. सो राजीव, रंजन एंड ऋषभ आर एब्सेंट. ठीक है, आई विल शेयर दीज प्रॉब्लम्स. जो मैं प्रॉब्लम्स आपको भेजती हूँ आप वो किया करें.